Satya sir, am I audible? Yes, Hello. sir. Yes, sir. Yes, sir. The screen that I have shared, the slide, is it visible also? Yes, sir. The screen is also visible.
Am I audible? Yes, sir. Amit sir, are you there? Amit sir, am I audible? Hello. Okay, meanwhile, Amit sir is trying to tune with the presentation. So let me welcome all the participants in this session 9. So we have another eminent speaker for today's session, and he is going to deliver his speech soon. I would request Dr. Satyaprakash sir to kindly formally introduce Dr. Amit Verma sir to the audience. Thank you so much, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. You are audible. Good afternoon to everyone. Our next eminent speaker is Mr. Amit Verma. Mr. Verma did his MTech in software system from Guru Nanak Dev University and BTech in information technology from Vyant Engineering College, Gurdaspur, affiliated by Punjab Technical University. Mr. Verma currently working as an assistant professor in research and development department in Chandigarh University, Mohali. He has experience of 11 years in teaching and research profession in various colleges. He has published numbers of articles in reputed journals and received project grants from Department of Science and Technology, Government of India. Without making further delay, now I request Mr. Verma to enlighten his thoughts about the role of AI in agriculture and motivate us with the valuable ideas. Sir, please. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Amit sir, you are audible. Is there any PPT you are going to share, because we can see Yeah. the Yes, browser, sir. Yes, sir. browser window here.
Is my screen is visible, sir? Your whole screen is visible, sir. You can specifically share the PPT only here, or otherwise you can share the screen as per whatever you feel. Yes, sir. I actually I want to share my screen now. Oh, okay, no problem. Then, please. Is my screen is visible? Yeah, your screen is visible. We can see the browser window here, and now the PPT is visible to us. Okay, sir. Hello, everyone. I'm Amit Verma, and I'm here to discuss about the role of the artificial intelligence, how it is important in the precision agriculture. Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. you are audible. Sir, unlike Now, classroom lectures, you are hardly going to get any reaction in between. okay, sir. Yes, sir. These are the topics we are going to be covered in this presentation. First is the role of the artificial intelligence in the country's economy, कि कैसे हमारा एग्रीकल्चर किसी भी कंट्रीज इकोनॉमी में हेल्पफुल है. सेकंड इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रीकल्चर फ्रॉम 1.0 टू 4.0. दैट इज कि कैसे हमारा एग्रीकल्चर हमने इनको डाइवर्ज किया हुआ है फ्रॉम 1.0 टू 4.0. एंड नेक्स्ट इज द हाउ व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि कैसे कौन कौन सी हमारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हम करना चाहते हैं, जहाँ हम कैसे किस तरीके से हम कर सकते हैं. दिस इज द थर्ड टॉपिक. देन हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर. देन व्हाट इज द definition of the computer vision, image processing, and the deep learning techniques. Then we have developed a plant disease detector app that is from the Chandigarh University. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा और क्या कंक्लूजन रहेगा, क्या हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट्स रहेगा कि हम एग्रीकल्चर में किस तरीके से ऑटोमेशंस को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स. So first is the role of the agriculture in the country's economy. जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी या उसका उसके रिलेटेड जितना भी हमारा डाटा है, जितना भी हम किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं अपने, वो किस तरीके से हमारा काम आता है, उसके लिए समझेंगे फर्स्ट. The first point is the agriculture sector is the backbone of an economy which provides the basic ingredients to mankind and now raw material for the industrialization. This is the first point कि एग्रीकल्चर हमारा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए उसका एक बेसिक इंग्रेडिएंट है एंड वी आर यूजिंग दिस agriculture as a raw material for the industrialization. Second point is the human civilization begins with agriculture. As we all know कि हमारा जितना भी हमारा ह्यूमन ये सिविलाइजेशन है वो हमारा एग्रीकल्चर से बिगन कर रहा है. Agriculture sector plays a strategic role in the process of economic development of a country. This is also true कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री के लिए हमारे सिर्फ हमारी कंट्री के लिए नहीं, किसी भी कंट्री के लिए हमारा एक यूज हो रहा है. इट हैज ऑलरेडी मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक prosperity of the advancement
countries and its role in the economic development of the less developed countries. And in other words, the per capita income of with the help of the agriculture, we are using this agriculture for the development of the any country. And it is correctly observed that the leading industrialized countries of today were once predominantly agricultured agriculture cultural, while the developing economies still have the dominance of agriculture. हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए कि एग्रीकल्चर एक ऐसा टूल है कि जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. एंड if we consider our country in India, there is still 28% of the national income that is come from the agriculture. So this is the basic structure in which we consider that the agriculture is playing a vast role for the economy of the country. This is a second tool in which, hello, Sir, please continue. Yes, sir, you are audible. okay sir. Okay sir. So this is a second PPT in which we are considering the different, we are considering the agriculture as a different tools for the source of the different supplies. So first is the source of the food supply. Agriculture is the basic source for the food supply of all the countries of the world. अगर वो अंडर डेवलप्ड है और डेवलप्ड है और इवन की डेवलपिंग है, तो एग्रीकल्चर हमारा ऐसा टूल है कि जिसमें हम सोच सकते हैं दैट एग्रीकल्चर इज द बेसिक टूल ड्यू टू हैवी प्रेशर ऑफ द population in the underdeveloped and the developing country. It's a rapid increase. हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन जो है कि वो बढ़ रहा है इन एज अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द ईयर्स. हमारा पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है. सो हम उसको मान सकते हैं कि पॉपुलेशन इज a population is a directly proportional to the agriculture ingredient. So if the agriculture fail to meet that population, then we have to think about कि हम कैसे किस तरीके से उसको हम increase कर सकते हैं. This is the equation, that is increase in demand for the food in an economy is determined by the following equation. This is the equation, that is D is equal to P plus 2G, where D is the annual growth and P is the population growth and G is the rate of the increase in the population. So हमारा जो भी हमारा डिमांड है that is directly proportional to the population and the rate of increase in the population. That this is the main expression that is there, that is D is equal to P plus 2G. So इसको आप हमेशा याद रखना कि हमारा जो भी डिमांड है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि पॉपुलेशन हमारी कैसे इंक्रीज हो रही है और हमारी ग्रोथ कैसे इंक्रीज हो रही है. So the next slide is the prerequisites for the raw material. Agriculture advancement is necessary for improving the supply of the raw material for the agro-based industries, especially in the developing countries. हम जैसे कि जानते हैं कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें हमारा एग्रीकल्चर का क्या रोल हो सकता है. सो इसको हमें जानना चाहिए. द शॉर्टेज ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो
हमारी किसी तरह की भी इंडस्ट्रीज हो, उसको डायरेक्टली इन्हांस करती है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. The flour mill, rice mills, and draw mills, breed, meat, milk production, sugar factories, and these all industries are directly proportional to our uh, agriculture productions. This is the agriculture are also is a directly proportional to our surplus. The progress in the agriculture sector provides a surplus for increasing the exports for the agriculture products. In the earlier stages of the development, an increase in the export earnings is more desirable because of the greater strains on the फॉरेन एक्सचेंज. हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे जो पुराने हमारे पुराने हमारे एक्सपेंशंस थे, उसको डायरेक्टली हमारा जो एग्रीकल्चर था उसको डायरेक्टली एनहांस करता था. द शिफ्ट ऑफ द मैन पावर, agriculture absorbs a large quantity of labor force. In India, about 62% of labor is absorbed in this sector. दिस इज द मेन पॉइंट कि हमारा जो इंडिया में भी 62% ऐसा हमारा सेक्टर है जो डायरेक्टली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर से. Thus, the release of the surplus manpower from the agriculture sector is necessary for the progress of the agriculture sector. So, ये स्लाइड हमारा ये शो कर रहा है कि हमारा सरप्लस जितना भी हमारी लेबर थी उसको हमने किस तरीके से एग्रीकल्चर पे प्रमोट करना है. This slide shows the relief from the shortage of the capital. The development of the agriculture sector has minimized the burden of the agriculture developed countries that were facing the shortage of the foreign capital. किसी भी कंट्री के लिए अगर आपका एग्रीकल्चर सही है तो उसके लिए हमें किसी भी अदर कंट्रीज के लिए डिपेंडेंट होना वो हमारा छूट जाएगा. इफ द फॉरेन कैपिटल इज अवेलेबल विद स्ट्रेंथ, इट विल क्रिएट अनदर सिग्निफिकेंट. अगर हमारा एग्रीकल्चर सही नहीं है तो हमें अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा. तो उसके लिए एग्रीकल्चर को हमें अच्छा प्रमोट करना पड़ेगा. किस तरीके से हमें उसे दिखाना पड़ेगा कि हम एग्रीकल्चर को अच्छा अपने कंट्री में दिखा रहे हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर्स लेस कैपिटल फॉर इट्स डेवलपमेंट. ये तो हमें पता ही है कि किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें लेस कैपिटल चाहिए होगी उसकी डेवलपमेंट के लिए. देन देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज एग्रीकल्चर हेल्प टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी. किसी भी कंट्री के लिए इन अ कंट्री विच इज प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चर और ओवर पॉपुलेटेड, है ना, क्योंकि कोई भी हमें कोई कंट्री होगी वो ओवर पॉपुलेटेड होगी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होगी, तो उसको इनइक्वालिटी या इक्वालिटी के साथ मैच करने के लिए वी हैव टू एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स to reduce this inequality of income. It is necessary to accord the necessary priority for the agriculture. The prosperity of the agriculture would raise the income of the majority of the rural population and thus disparity in the income for the reduction of the certain document based on the डेमोक्रेटिक नोटेशन. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा कंट्री है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है, तो हमें इस कंट्री के लिए इस तरीके से हमें अपना संविधान या हमें अपना बनाना चाहिए कि हमारा एग्रीकल्चर ही हमें एक ऐसा संविधान पर दे ताकि हमें उस एग्रीकल्चर के थ्रू ही हमें एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो. इफ द एग्रीकल्चर सेक्टर डजंट ग्रो एट अ फास्टर रेट,
इट मे रिजल्ट इन ग्रोइंग डिसकॉन्टिनेंट। अगर हमारा एग्रीकल्चर ही हमारा अच्छे तरीके से नहीं ग्रो करेगा तो हमें एक डिसकॉन्टिनेंट प्राप्त होगा। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज द पॉलिटिकल एज वेल एज द सोशल टेंशन। आजकल आप देख ही रहे हो कि हमारी कंट्री में किस तरीके से पॉलिटिकल और सोशल टेंशंस इंक्रीज हो रही हैं। तो उसको डिक्रीज करने के लिए हमारा ऐसा इस तरीके से हमारा होना चाहिए कि हम एग्रीकल्चर को ही अपना एक तरह से अपना संविधान माने। In case of the majority of the people have to be kindled with the hopeness of the prosperity. This kind of attainment with the help of the agriculture process can be possible, है ना। हम एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोसेस को इस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं कि ताकि हमारा जिस तरीके से भी प्रॉस्पेरिटी हमारी कंट्री की अटेनमेंट हम हासिल कर सकें। Thus, the development of the agriculture sector is also relevant on the political as well as the social grounds. So, this is the next slide in which we have to create the effective demands. As we all know, the development of the agriculture sector would tend to increase the purchase power of the agriculture, which will help the growth of the non-agriculture sector of the country. It will provide a market for increased production. In underdeveloped countries, it will well known that the majority of the people depend upon the agriculture, and it they who must be able to and afford the consume on the good production. इसको अगर हिंदी में एम्प्लॉय करें तो हमें इस तरीके से हमने अपनी डिमांड्स बनानी है। इस तरीके से हमने अपनी डिफरेंट एग्रीकल्चर की डिमांड्स बनानी है ताकि हमें उस तरीके का रिजल्ट मिल पाए। देयरफॉर इट विल बी हेल्पफुल इन सिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरीके से बढ़ा लें ताकि हमारा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर उसको हम ओवरकम कर पाए। Similarly, improvement in the productivity of the cash crops may pave the way for the promotion of the exchange in our economy between the countries of the different। अगर हमने एग्रीकल्चर को इस तरीके से बढ़ा लिया तो हम डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू उस एग्रीकल्चर डिमांड्स को हम बढ़ा पाएंगे। उस एग्रीकल्चर को डिमांड्स को हम आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे। इट विल आल्सो हेल्पफुल इन फेजिंग आउट इकोनॉमिक डिप्रेशंस in which during the depression industrial production can be stopped or reduction, but agriculture production continues as its production necessities. So this is the slide in which we have to affect our demand as per the requirement of. This is a source of the foreign exchange for the country. जैसे कि हम जानते हैं कि हम अगर एग्रीकल्चर को हम अच्छा सा कर पाएंगे तो हम अपने कंट्रीज के साथ दूसरी कंट्रीज को भी एक फॉरेन एक्सचेंज को सही तरीके से ला पाएंगे। सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स दैट आर देयर। एज वी ऑल नो most of the developing countries of the world are exporters of the primary products। हमारा भी हमारी कंट्री का भी यही हिसाब है कि हमारा कंट्री है जो वो एक तरह से एक्सपोर्टर है, वो बहुत बढ़िया। These products contribute 60 to 70% of their total export earning. Thus, the capacity to import capital goods and machinery for the industrial development depends crucially on the export earning of the agriculture sector. So, ये फर्स्ट पॉइंट बहुत समझने वाली बात है कि
हमारा जो 60 to 70% हमारा टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग है वो डायरेक्टली हमारा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे. The second is the if the export of the agriculture fails to increase at the sufficiently rate, these countries are forced to increase a heavy detect deficit in the balance of the payment. अगर हमारा कंट्री एक्सपोर्ट करने में फेल करता है तो हमें सोचने की जरूरत है. However, the primary good faced a declining price in the international market and the prospects of the increasing exports earning. Due to this, large developing countries like India, हमारा इंडिया जो है इट्स नॉट अ underdeveloped or this type, we are in a developing stage and are trying to diversify their production structure and promote the export of production manufactured good. हम पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि हम पूरा अपना जिम्मा लगा रहे हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को. तो इसको इस तरीके से हमें इसको लेना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल पीपल. Agriculture provides employment opportunities for the rural people on the large scale in the underdeveloped and the developing countries. This is the first and the I think this is the most जिसको कह सकते हैं कि हम एक अपना रिजल्टेंट मान सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके तरीके से हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के थ्रू हम इसको जितनी भी कंट्रीज है उसको हम बांट सकते हैं. इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. एग्जैक्टली जितनी भी हमारी जो भी हम एग्रीकल्चर को मान रहे हैं वो हम एक इम्पोर्टेंट सोर्स मान रहे हैं लाइवलीहुड का. जनरली लैंडलेस वर्कर्स, मार्जिनल फार्मर्स are engaged in non-agriculture jobs like handicrafts, furnitures, textiles, leathers, metalworks, processing industries, and in others different sectors. ये नहीं है कि हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर ही है. देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स जिसमें फर्नीचर भी आता है, हमारा हैंडीक्राफ्ट भी आता है, लेदर भी आता है, मेटल वर्क भी आता है, जिसको हम इसके अंदर मानते हैं. Agriculture provides funds for the capital formation in many ways. As we all know कि एग्रीकल्चर अगर हम एग्रीकल्चर को अच्छा मान रहे हैं then we find that agriculture as a capital formation in which these 5 different formations are there. First is the agriculture taxation, एक्सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें हम मानते हैं कि हम अपनी डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम बांट सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में. कलेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस बाय द गवर्नमेंट एंड सेलिंग इट एट द हायर प्राइस. कितनी भी कंट्रीज के थ्रू हम कितनी भी प्रोडक्ट्स को हम एक्वायर कर सकते हैं और उनको हायर प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. देन लेबर इन द डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट लार्जली कन्फाइंड टू द एग्रीकल्चर. दिस इज द मेन स्लाइड. हेलो, दिस इज द मेन स्लाइड that I am going to hello. Sir, please continue. Okay. This is the main slide in which different I'm going to मैं इनको मान सकता हूँ कि ये एक तरह से फादर्स हैं कि हमारी एग्रीकल्चर के रिलेटेड या हमारी एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं. These are the different professors
first is the Kinderberger, and then the Candargo, Lewis, and the Norsko, etc. Excuse me, sir. Hello. Sir, your slide is not visible. Is it visible now? No, sir. Is it visible, sir? No, sir. No, sir. Somebody wants to ask any question? Is there any participant having any query? Is it visible, sir? Yes, sir. Yes, Amit sir, it is visible. Visible. So इनको मैं इस तरीके से मानता हूँ कि ये 3-4 प्रोफेसर ऐसे हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर में किस तरीके से ऑटोमेशन को हमने इंक्लूड करना है. दीज आर द फादर्स, एज वी ऑल नो ना, दीज आर द फादर्स ऑफ द automation of the different agriculture practices, of the different automation practices in the agriculture. And these are the Kinderberger, Kendargo, Lewis, and the Norks. And so these जितने भी हैं हमारे ये 3-4 प्रोफेसर, ये इनकी फाइंडिंग्स हैं that by providing food and the raw material to the non-agriculture sector of the economy, हम इसको मान सकते हैं कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के किस तरीके से हमने उनको प्रोवाइड करना है ताकि उनको वो हम उनको इस तरीके से बता सकें कि हम उनको कुछ हेल्प कर रहे हैं. बाय क्रिएटिंग डिमांड्स for good produced in non-agriculture sector by rural people on the strength of the purchasing power earned by them on selling the marketable surplus. कि किस तरीके से हम उन सरप्लस को रिक्रूट कर पा रहे हैं और किस तरीके से उनको हम बेच पा रहे हैं. by providing an investable surplus in the form of the savings, किस तरीके से फार्मर्स उन डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोसेसेस को अपनी सेविंग्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं. बाय अर्निंग डिफरेंट वैल्यूएबल इन द फॉर्म ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कि हम डिफरेंट कंट्रीज में किस तरीके से उन फार्मर्स को उन डिफरेंट टेक्निक्स को बेच पा रहे हैं. एम्प्लॉइंग ए वास्ट आर्मी ऑफ uneducated or the backward or the unskilled labor. हमारे पास पता है कि हमारे पास बहुत ही अनस्किल्ड लेबर है, हमारे पास बहुत ही अनएजुकेटेड लेबर है. तो उसको हमने किस तरीके से ग्रो करना है so that we are going to give a platform to them for a good agriculture production. So up to this we are going हमने ये सारा जाना कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को हमने डिफरेंट सेक्टर्स में हमने एक्यूरेट करना है. सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. हमारा एग्रीकल्चर इंडिया में कैसा है? एग्रीकल्चर हमारा इंडिया में कैसा है? एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. हमें पता है आज से मतलब हजारों साल पहले पता है कि एग्रीकल्चर इज playing an important part in Indian's economy, and at present it is among the top 2 farm producer in the world. आज भी हमें ये पता है कि एक हमारे इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए जो एग्रीकल्चर है वो एक टॉप 2 फार्म प्रोड्यूसर है. This sector provides approximately 52% of the total number of jobs available in India and contributes about 18.1% of the GDP. This is the second point and the far most important point. हमारा जो एग्रीकल्चर है वो
52% जॉब्स अवेलेबल करवा रहा है इंडिया में। और पूरी जो जीडीपी है, अगर 100% की जीडीपी है तो उसमें 18.1% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर हमारा इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इज द ओनली मीन ऑफ लिविंग फॉर ऑलमोस्ट 2/3 एम्प्लॉयड क्लासेस इन इंडिया। अगर हमारा पूरा माना जाए और 2/3 हम माने जाए कि पूरे एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें 2/3 एम्प्लॉयमेंट है जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। As being stated by the economic data of the financial year of the 2006-2007, agriculture has acquired 18% of the Indian. This is the authentic data. This is not a that data we I'm going to fabricate it or something else. Where approximately 18% of the total independent of the Indian data that is directly contributed to the GDP. The agriculture sector of the India has occupied almost 43% of the geographical data. लास्ट जो पॉइंट है ना, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जितना भी ज्योग्राफिकल डाटा मैप है हमारा इंडिया मैप का, उसमें 43% ऐसा मैप है जो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड होता है और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है हमारा एग्रीकल्चर के लिए। सो एग्रीकल्चर इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। दिस इज द स्टेटस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया, इन विच द एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। हमें पता है, पिछली स्लाइड में पता चला कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। ओवर 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। हमें पता है जितने भी हमारे लोकल हैं, हमारे एक शहर के रिलेटेड या गाँव के रिलेटेड है, वो डायरेक्टली हमारा एग्रीकल्चर के रिलेटेड एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक तरह हमारा डिपेंड करता है ओवर 70%। हमारा टोटल जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जहाँ जो भी पूरा इंडिया के रिलेटेड है, उसमें 70% दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द on the agriculture, 70% of the total population. Agriculture is an important sector of the Indian economy as it contributes over 17% to the total GDP. सोचो हमारा 17% GDP का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा एग्रीकल्चर पे। इंडियन एग्रीकल्चर हैज रजिस्टर्ड इंप्रेसिव ग्रोथ ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स। वो तो हमें पता ही है कि लास्ट हमारा 60 to 70 जो 70 हमारा 1960 1970, उसके बाद हमारा डायरेक्टली हमारा एग्रीकल्चर के रिलेट करता है। द फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज्ड ओवर 51 मिलियन टन्स। सोचो हमारा 51 मिलियन टन्स जो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारा एग्रीकल्चर। This is the main PPT in which DESMOA relates with Directorate of Economic and Statistics, Ministry of Agriculture। ये हमारा मेन एक पार्ट है हमारा पूरे इंडिया का, जो हमें बताता है कि हमारा एग्रीकल्चर किस तरीके से चल रहा है। जो फर्स्ट पॉइंट है उससे क्लियर हो रहा है, द DESMO is responsible for the collection, different collections। हमारा वीकली कैसा रहता है, हमारा ईयरली कैसा रहता है, हमारा मंथली कैसा रहता है, उसके रिलेटेड ये सारा हमारा DESMO है जो हमारा रिलेट करता है।
weekly wholesale prices over 140 different agriculture commodities is going to tell by the DSMO. हमारा जितना भी 140 डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं और जो कि फैली हुई है हमारी 620 मार्केट्स में, जो कि हमें ये DSMO बताता है ये हमारा इसका क्या रेट है, हमारा अपने राजमा का क्या रेट है, राइस का क्या रेट है, पोटैटो का क्या रेट है, एंड ऑल दैट. Retail price of these essential commodities are collected on a weekly basis on the 83 market centers. हमारे पूरे कंट्रीज में 83 डिफरेंट मार्केट सेंटर्स हैं जिसके थ्रू ये जो DUSMO है ये हमारे डिफरेंट प्राइसेस कलेक्ट करता है. और ड्यूरिंग दिस दे आर गोइंग टू टेल कि हमारा क्या रिलेशन रहेगा डिफरेंट मार्केट्स के रिलेटेड एंड ऑल दैट. इंपॉर्टेंस इन दी इंटरनेशनल ट्रेड. दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट आर देयर कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अदर इंटरनेशनल ट्रेड्स इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ कैसे रिलेट करता है. फर्स्ट इज द शेयर इन द इंटरनेशनल इनकम. पता है कि हमें जो जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी होगी वो दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे एम्प्लॉय करेंगे. सेकेंड इज द सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा जो भी एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट होगा वो हमारा डायरेक्टली रिलेट करेगा हमारी कंट्री के साथ. थर्ड इज द प्रोविजन ऑफ द फूड ग्रेन. पता चलेगा हमें कि किस तरीके से हमारी जो फूड ग्रेन्स हैं वो हमें अवेलेबल है या नहीं है, कि किस तरीके से हमारी जो पोटैटो की, एप्पल की, राइस की, किस तरीके से वो हमारी फूड ग्रेन्स अवेलेबल है या नहीं है. देन द नेक्स्ट वन इज द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का भी पता चलेगा हमें कि किस तरीके से हम उन रॉ मटेरियल को यूज कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. देन द मटेरियल फॉर द डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. वो भी पता चलेगा कि हम उन चीज़ों को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज द अर्नियर फॉर द फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि हम उन चीज़ों को अदर कंट्रीज के साथ किस तरीके से बांट सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंस फॉर द ट्रेड फॉर द ट्रेड एंड द ट्रांसपोर्ट. वो पहले वाले के साथ रिलेट करके देखो तो इसको हम मान सकते हैं. देन द लास्ट वन इज द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू. ऑब्वियसली कि किस तरीके से हम उसको मान सकते हैं कि वो हमारा सोर्स है हमारे रेवेन्यू के लिए फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द अदर पीपल. ये स्लाइड याद रखना हमेशा. 50% of the Indian population depend on the agriculture. This is the left one in which the agriculture industry is there, and this is the right one in with the other industries. हमारी कंट्री के अप्रोक्सीमेटली 50% ऐसी हमारी एग्रीकल्चर या ऐसी हमारी इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारा एग्रीकल्चर पे और अदर इंडस्ट्रीज पे. इसके आगे वाली स्लाइड आपको बताएगी कि अदर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं. दिस इज द रोल ऑफ द डिफरेंट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इन विच दिस इज द ऑथेंटिक डाटा इन विच द एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द 53% कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 53% हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी कंट्री के इकोनॉमी पे, और बाकी जो हमारी 47% है वो दीज आर दी डिफरेंट इन विच द मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, एस्टेट, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड दी अदर्स. और इसमें देखो कि हमारी गवर्नमेंट की है सिर्फ 2%, और हम रोते रहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए. हाँ,
इसमें सिर्फ 2% है और 53% है जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसको याद रखना हमेशा कि अगर हम चाहें तो हम एग्रीकल्चर को एज ए अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रोफेशन बना सकते हैं, क्योंकि 53% हमारी जो एग्रीकल्चर की अपने रिलेटेड इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही है हमारी एग्रीकल्चर पे, और सिर्फ 2% कर रही है सिर्फ गवर्नमेंट पे। और हम रोते रहते हैं कि हम गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम this slide shows the agriculture, the backbone of India. A large part of the Indian population is involved in the agriculture. हमें पता है आज की नहीं, इवन की आज से 10,000 मतलब 1000 साल पहले भी हमें पता है कि हमारा जो मेन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। अगर एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। So this slide shows the how the agriculture shows the is the backbone of the India. This slide shows that how the agriculture contributes in the percentage as well as the in the millennium wise of the country. The first is the agriculture. It shows that agriculture contributes overall as a 103%. So वन ऑफ द वास्टेस्ट एंड दी सबसे ज्यादा हमारी जो भी कंट्रीब्यूट कर रही है वो हमारा एग्रीकल्चर है, और परसेंटेज वाइज भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर ही है, दैट इज 72%। दिस इज अ सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी जिसमें प्राइमरी हमारा जो है दैट इज द एग्रीकल्चर। दिस इज द फर्स्ट दैट इज प्राइमरी activities related to the agriculture, and the secondary is the activity related to the manufacturing industry, and the third one is the agriculture generating the services. And these two, the secondary and the tertiary, is directly dependent upon the agriculture, that is the primary. This is a commercial importance in which Indian agriculture is playing a very important role both in the internal and the external trade of the country. वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो हमारा इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल ट्रेड में किस तरीके से काम आता है। सेकेंड वन इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, शुगर, टोबैको, स्पाइसेस, कैशू नट्स एटसेट्रा आर द मेन आइटम्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। ये सारे हमारे मेन एक्सपोर्ट्स हैं और बाकी कंट्री सोच भी नहीं सकती इस बारे में। Besides manufacturing, jute also contribute 20% of the total export of the country. Thus, export 70% of the India's export originated from the agriculture sector. हमारा पूरा जितना भी हमारा एक्सपोर्ट है उसमें 70% हमारा ऐसा है जो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर, हमारा जो भी छोटा मोटा कारोबार है उस वो किस तरीके से रिलेट कर रहा है हमारे इकोनॉमी में। देन द सेकंड जो हमारा सेकंड कंपोनेंट था वो हमारा था कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम दी 1.0 टू 4.0। हमने एग्रीकल्चर को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है 1.0 से 4.0। समझ रहे हो कि 1.0 आगे आपको समझ लगेगा कि 1.0 है क्या, 4.0 है क्या, वो आगे आपको समझ लगेगा। एग्रीकल्चर 1.0 रेफर्स टू ए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एरा, जो हम पहले यूज करते थे, बिल्कुल बेसिक, जिसमें हम गाय भैंस एंड ऑल दैट बिल्कुल बेसिक वाली चीजें यूज करते थे हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और इसको हम यूज करते रहे हैं 19th सेंचुरी तक, अंटिल द 19th सेंचुरी, जिसमें हम स्टीम इंजन यूज करते थे ताकि हमें थोड़ा अपग्रेड मिले। In the 20th century, agriculture 3.0 emerged from the
रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटिंग एंड द, उसके बाद पहले हम बिल्कुल यूज करते थे बेसिक वाला, जिसमें हम गाय भैंस और उनका अपने हल वगैरह किस तरीके से यूज करते हैं वो यूज करते थे, दैट इज द 1.0। देन 2.0, 2.0 में क्या यूज करते थे, थोड़ा सा उससे अपग्रेड किया, ठीक है, कि किस तरीके से उसको अपग्रेड करने के, जैसे ट्रैक्टर वगैरह एंड ऑल दैट, उसको यूज करना शुरू किया। 3.0, देन 3.0, 3.0 में क्या किया हमने, थोड़ा सा कंप्यूटेशन और ऑटोमेशन उसमें इंक्लूड कर दिया, कि ऑटोमेशन कैसे इंक्लूड होगा, जिसमें हमने डिफरेंट तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यूज किए। और हम अभी यूज कर रहे हैं 4.0, जिसमें हम डिफरेंट तरीके के रोबोट्स और ड्रोन्स, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि हमने 4.0 में ड्रोन्स को कैसे यूज किए। सो दिस इज द एरा, एक तरीके से हायरार्की है कि 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0, कि 1.0 में हमने बिल्कुल बेसिक यूज किया, 2.0 में उससे थोड़ा एडवांस यूज किया, 3.0 में 2.0 से एडवांस यूज किया, और 4.0 अभी हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम ड्रोन्स, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स डिफरेंट एंड ऑल दैट हम यूज कर रहे हैं। In 2013, the German government firstly proposed Industry 4.0, that is known as fourth industrial evolution। जर्मन वालों ने अपने किया होगा, हम यूज की 4.0, जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन मानते हैं, कि जिसमें डिफरेंट drones and all that technologies and the automation in the agriculture are used for the different agriculture processes on the ground। अनडाउटली हाई डिमांड, और इसका जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतना हाई डिमांड हमें यूज पड़, मतलब जैसे कि जहाँ अब मैंने पहले भी बताया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, तो उसको मीट करने के लिए एक तरीके से उसको हमने उसको मतलब मैच अप करने के लिए हमने 4.0 यूज किया। फोर मेन रिक्वायरमेंट्स एज पुट फॉरवर्ड्स एंड एल्स। अब इसको 4.0 की जरूरत की पड़ी, मैंने पहले बता दिया कि फर्स्ट इज द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जितनी ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी होने की उतना ज्यादा हमें यूज करना पड़ेगा। एलोकेटिंग रिसोर्सेज रीजनेबली, naturally resources are incredibly stressed nowadays। Firstly, unused lands are cultivated for the rare and the 25% of the farmlands। हमारी आजकल की जो क्लाइमेटिक चेंजेस है उनको मैच अप करने के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ी। देन द फोर्थ वन इज अवॉइडिंग द फूड वेस्ट। पता ही है हमारा आजकल मैरिज जितनी भी शादियां हो रही होती है, कितना कितना फूड वेस्ट हो रहा है, तो उसको मैचअप करने के लिए हमें इस चीज की जरूरत है। सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ विद दिस, दैट in 2013 the German government firstly proposed 4.0, known as the fourth industrial evolution। 2 year later, that is वहां 2 साल बाद उसको जरूरत पड़ी। अनडाउटली हाईली डिमांड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें हाईली डिमांड, इतना ज़्यादा मतलब हमें डिमांड की ज़रूरत पड़ी अपने फूड की और डिफरेंट फूड ग्रेन्स की, ताकि हमें इसको 3.0 टू 4.0 कन्वर्ट करना पड़े। फोर मेन रिक्वायरमेंट एज पुट फॉरवर्ड एंड these are the different requirements। First is the increasing productivity, second is the allocating resource reasonably, third is the adapting to climatic change, and fourth one is the avoiding the food waste। These are the different, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो एक तरह से जनरलाइज्ड है। दिस इज अ जनरलाइज्ड थिंग कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी,
ठीक है, सेम इज द रीजन द क्लाइमेट चेंज होगा तो उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, फूड वेस्ट ज़्यादा होगा तो उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। दो सो दीज आर द डिफरेंट 3-4 different requirements. This shows the agriculture from 1.0 to 4.0. Agriculture 1.0 हमारा 10,000 BC से पहले क्या चल रहा था? फर्स्ट इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन, दैट इज द हमारा बिल्कुल बेसिक चलता था पहले। फिर इंडस्ट्रियल 2.0 आई जिसमें थोड़ा सा इवॉल्व हुआ। देन इंडस्ट्रियल 3.0 आई जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर हुई, कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स एंड ऑल दैट। एंड द लास्ट वन इज द 4.0 जो भी हम चल रहा है हमारा, जिसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारा हमारा 4.0 में है। These are the different technologies in the agriculture practices. हम अब इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन अ फ्यूचर इन विच इंटेलिजेंस नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमंस। अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि हमारे ह्यूमंस में इंटेलिजेंस जहाँ मतलब उसको अपग्रेड करने की जरूरत है ही नहीं, तो क्या होगा? उसके रिलेटेड हमारे जितने भी रिपरकशंस आए वो हमारे काम आएंगे। और वो जो चीजें हैं और वो so much things that we are going to increase by the 90% of it. हमारा अगर 90% हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारे 90-95%, तो उसको हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ चीजें लेके आए हैं जिसमें हमारा कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग आएगा। कंप्यूटर विजन क्या है? Computer vision is an interdisciplinary scientific field that deals with how computer can gain high-level understanding from the digital images. अगर हम किसी भी चीज की फोटो खींचते हैं तो उसको हम किस तरीके से अपने यूज में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल सी किसी लीफ की फोटो खींचते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि उस लीफ की क्या स्पॉट्स हैं जिसके थ्रू हमें पता लग जाए कि इस प्लांट में क्या डिजीज है। तो कंप्यूटर विजन उसमें हेल्प करेंगे। कंप्यूटर विजन टास्क इंक्लूड्स मेथड्स फॉर एक्वायरिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिजिटल इमेजेस। बिल्कुल सही। 4 मेन थिंग्स होती हैं। एक्वायरिंग मतलब कि हमने उस चीज को अपने डाटाबेस में लेना। देन प्रोसेसिंग, उस चीज को प्रोसेस करना कि किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है कि ताकि हमें यूजफुल बन सके। देन एनालाइज, उस यूजफुल थिंग को एनालाइज करना। एंड द थर्ड वन इज द अंडरस्टैंडिंग, उस जो भी हमने एनालाइज किया है उसको अंडरस्टैंड करना कि हमें क्या यूजफुल थिंग मिल रही है। ये है हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर विजन। सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी, आज से 60 साल पहले स्टार्ट हो गई थी कंप्यूटर विजन, कि हमने किस तरीके से कंप्यूटर विजन को यूज करना है। और 1974 में, 1982 में, 2000 में, ये सारा अभी तक पूरा निचोड़ अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से इसको हमने यूज किया है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर कि 1970 से 2000 तक किस तरीके से इवॉल्व हुआ है हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, देन द ब्लॉक वर्ल्ड एंड लाइन इमेजिंग एंड ऑल दैट, एंड up to the last, that is the 2000, that is the learning. How does computer vision works? किस तरीके से वर्क करता है? दिस इज द मेन स्लाइड। हमने पहले किसी भी कंप्यूटर को इमेज देनी है एज ए इनपुट। दोनों इमेजेस में आपको दिख रहा है कि हम इनपुट दे रहे हैं। फर्स्ट इमेज में दिख रहा है कि आपने किस तरीके से उस इनपुट इमेज को अपने डिफरेंट फीचर्स उसके एक्सट्रैक्ट करने हैं और लास्ट में आउटपुट निकालनी है। दिस इज द फर्स्ट इमेज। एंड द सेकंड इमेज कि हमने सिर्फ इनपुट देनी है और
हमारा जो भी जितना भी हमारा इनपुट हमारा डाटा है उसको यूज करके हमारा लास्ट में आउटपुट बन जाएगा। दीज आर दी टू डिफरेंट स्टेजेस कि जिसमें हम एक तो एक आदमी खुद कर सकता है और उसमें एक तरीके से ऑटोमेशन कर सकता है। This is the working of the computer vision, in which the pre-processing and the segmentation of the image, and then the feature extraction of the crop disease. अब इसमें बताता हूँ आपको हुआ क्या। एक आपने इमेज आपने किसी भी मॉडल को दी, उसमें क्या किया, उसमें उसने प्री प्रोसेस किया कि ये हमारी इमेज एक लीफ की है, उसमें एक छोटा सा स्पॉट है, वो हमारा प्री प्रोसेसिंग उन्होंने की। उसके बाद उस स्पॉट को यूज करके उन्होंने उसने फीचर एक्सट्रैक्शन की कि हमारा ये स्पॉट है जो किस डिजीज को डिटेक्ट कर रहा है, और लास्ट में डिटेक्शन की। एक तरह से जनरलाइज्ड थिंग, दिस इज जनरलाइज्ड। These are the different processes of the computer in which the पहले कंप्यूटर इमेज आएगी, उसकी प्री प्रोसेसिंग होगी, उसकी सेगमेंटेशन होगी, उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन होगी और लास्ट में क्लासिफिकेशन होगी। दिस इज द इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग इज द फील्ड ऑफ एनहांसिंग द इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि आपने इमेज को एनहांस करना है, उसको चाहे कंट्रास्ट बढ़ा दो, कलर कुछ भी करके उसको इस तरीके से बना दो ताकि वो आगे आपको यूजफुल हो सके। These are the different segmentations of the image processing that are there, जिसमें क्लासिफिकेशन होगी और सेगमेंटेशन होगी, फीचर एक्सट्रैक्शन होगी, ठीक है, मल्टी स्केल सिग्नल एनालिसिस होगी, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोजेक्शंस ऑफ द इमेज प्रोसेसिंग, जिसमें पहले इमेज को आप क्लासीफाई करोगे, सेगमेंटेशन करोगे एंड ऑल दैट। अब इसको याद रखना हमेशा, दिस इज द इमेज प्रोसेसिंग। द फर्स्ट इमेज इज द रॉ इमेज। एक तरह से रॉ इमेज है जिसमें आप अलग अलग सारे पूरे इमेज को आप एनालाइज कर सकते हो, उसको फिर आप कन्वर्ट करते हो सेकंड इमेज में, जिसमें थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हो, एंड थर्ड इमेज में उसको पिक्सल्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। दिस इज द इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है एक्चुअली, कि आपने एक रॉ इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना है। दिस प्रोसेस शोज द सेम, कि जिसमें रॉ इमेज आप डिजिटल इमेज में प्रोसेस कर रहे हो। थर्ड स्टेप इज द कि आप डिजिटल इमेज में कैसे प्रोसेस कर रहे हो, एंड दिस वन शोज द सेम इमेज प्रोसेसिंग एंड इमेज एनालिसिस, एंड द लास्ट वन द इमेज विजन, कि जिसमें इमेज किसी भी रॉ इमेज को आप सेगमेंटेशन या किसी भी अपने प्रोसेसेस के थ्रू आप एक इस तरीके से इमेज में प्रोसेस कर रहे हो ताकि वो हमारे लिए रीडेबल हो, और वो रीडेबल क्यों होगी, क्योंकि हमें वो पिक्सल्स में मिल जाएगी। तो दिस इज द यहाँ तक हमारा जो भी है ना, हमारा इमेज एनालिसिस, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो वो हमारा वो अभी तक शो होगा। अब इसको हमने यूज कैसे करना है कि हमारा, ताकि हम इसको यूज कर सकें हमारा रिसर्च एनालिसिस में। किसी भी रिसर्च क्वेश्चंस के लिए हमें ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए। दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस। विच इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस टेक्निक्स वर यूज्ड फॉर क्रॉप एंड वील्ड डिटेक्शन, ठीक है, कि कौन सी इमेजेस प्लांट की हमें यूज करनी चाहिए, आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका मेन मोटिव ये है। देन रिसर्च क्वेश्चन 2, देन विच agriculture task have been automated using the image processing and analysis technique, कौन सा टेक्निक हमें यूज करना चाहिए। विच heterogeneous architecture are used in precision agriculture, कौन सा heterogeneous architecture हमें यूज करना चाहिए। फोर्थ वन इज द which are the main clarification or the contribution that are there in the agriculture process। these are the different, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं।
और इसको हमने यूज कैसे कर रहे हैं कि हमारे जितने भी हमने रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसको हमने डिफरेंट डाटाबेसिस में यूज करना है, जैसे कि स्कोपस, साइंस डायरेक्ट, आई ट्रिपल एक्सप्लोर, स्प्रिंगर एटसेट्रा, पबमेड एंड वेब ऑफ साइंस एंड एटसेट्रा। उसमें हमें यूज करके उसको रिसर्च क्वेश्चंस में बना के हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है ताकि हमें यू पता चल सके कि हमने करना क्या है। ये मैंने स्कोपस का डाटाबेस यूज किया है कि जिसमें कंप्यूटर विजन और क्रॉप मैनेजमेंट दो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं, कंप्यूटर विजन एंड क्रॉप मैनेजमेंट, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी यही चल रहा है। हमारा जो कंप्यूटर विजन है कि हमारा कंप्यूटर मतलब किस तरीके से हमने कंप्यूटर्स को यूज करना है फॉर द डिफरेंट मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, एंड दी सेकंड वन द क्रॉप मैनेजमेंट, इसको हमने स्कोपस में यूज किया है। तो सो दिस इज द डाटा दैट वी गेट कि फ्रॉम द 1991 टू द 2021 कि इस तरीके से हमारा रिसर्च डाटा हमारा यूज अवेलेबल है कि फ्रॉम द 1991 फ्रॉम द 0 to 20, then the 1994 from the 20 to 40 and the continuation, and at the last from the 2021 it's about 2000 200. So this is the data from the Scopus database. ये एक अलग डाटाबेस है जिसमें हमने कंप्यूटर विजन जो हमारा कंप्यूटर विजन एक तरह से रिसर्च आर्टिकल है, उसको यूज किया कि वो बाकी रिलेटेड बाकी कीवर्ड्स के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। अब ये हमारा जो डाटा है ना, ये जो हमने वॉस व्यूअर्स से फैच किया है। कंप्यूटर विजन जो बिल्कुल पास है, इमेज एनालिसिस, इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज सेगमेंटेशन, मतलब इसके साथ बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जितना भी दूर है, दैट इज फॉर एग्जांपल इमेज एनहांसमेंट के साथ बहुत दूर है, मतलब इससे कम काम हुआ है। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम मतलब अपना जो हमारा डाटा है, जो हमारा रिसर्च है, उसको किस तरीके से फर्दर कंटिन्यू करना है। अब ये भी डाटा मैंने वॉसव्यूअर से लिया कि कंट्री वाइज किस तरीके से उसको रिलेट किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स किस तरीके से चाइना के साथ, किस तरीके से स्पेन के साथ, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड वर्स्ट इंडिया के साथ सबसे दूर है, मतलब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का सबसे कम काम हुआ है। दिस स्लाइड शोज दैट। और ये मैंने वॉसव्यूअर से लिए हुए, और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वॉसव्यूअर से कैसे ली हुई है। ये सारा डाटा जो हमारा है वो हमारा स्कोपस से लिया हुआ है। So this shows the country wise research trends कि कंट्री वाइज एक दूसरे के साथ किस तरीके से हमने ट्रेंड किया हो। This also shows the cloud density. So this is also from the WOSWIR कि किस तरीके से हमारी कंट्री वाइज डिफरेंट कंट्रीज का हमारा डाटा है। एज चाइना देखो कितना ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स चाइना में सबसे ज्यादा काम हुआ है, उससे ज्यादा इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स। ये हमारा जो जितना भी डाटा है दैट इज वी आर फेच्ड फ्रॉम दी WOSWIR. This is the data that we fetched from the Scopus कि किस तरीके से फ्रॉम द 1972 एंड द 2021 हमारी जितनी भी रिसर्च ट्रेंड्स हैं वो किस तरीके से हमारे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। देखो 1972 टू 1984 हमारे अप टू 50 थे डॉक्यूमेंट्स, देन फ्रॉम द 1985 1986 up to the 2021
हमारे किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। तो हमें इसको समझना चाहिए। ये एक तरीके से हमें हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमने इसको रिसर्च में कैसे लाना है। हम इसको एक तरह से एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं कि ये चीज आजकल ज्यादा ज्यादा यूज हो रही है एंड ऑल दैट। तो इसको हम हम अपने रिसर्च एंड में ला सकते हैं। दिस इज द फ्यूचर स्कोप कि हम एग्रीकल्चर रोबोट्स को कैसे इसको यूज कर सकते हैं इन द agriculture practices. In agriculture board is a logical proliferation of the automation technology that are going to be used. जब जितने भी हमने पहले यूज किया उसको हमने रोबोट्स में यूज कर लेना है। That's it. Why AI in the agriculture? Why AI in the agriculture? हम AI को कैसे क्यों हम यूज कर रहे हैं? As we all know, the farming has been the bedrock of this portability for the economy of any nation. ऑलरेडी हम बढ़ चुके हैं कि किसी भी इकोनॉमी नेशन की इकोनॉमी के लिए जो फार्मिंग है वो एक इट्स द bedrock. As per the Food and the Agriculture Organization wing of the United Nations, the world population will have increased by the 2 billion in 2050. अगर 2 बिलियन के साथ हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमें सोच में पड़ना चाहिए कि क्यों हमने हमने इसको यूज करना ही करना है ताकि हमें इसको एक तरीके से एक ट्रेडिशनल मेथड में ला सकें। These are the different three main aspects in which we are going to categorize the applications of the AI. First is the agricultural robots. Second is the crop and the soil monitoring, and third is the predictive analytics. और इसमें हमने सेकंड वाले को इंडिया में हमने सेकंड वाले को ही मेन मानना है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड वन हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और हम सिर्फ सेकंड वाले को मेन मान सकते हैं क्योंकि हमने सेकंड वाले को ही मेन मान के अपना क्रॉप को बचाना है एक तरीके से। अब मैं इसको आपको दो तीन एक चीज और बताना चाहता हूँ जो हमारे हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में यूज हो रही है। हमने यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब डेवलप की है विद द हेल्प ऑफ द कोफोर्ज। कोफोर्ज एक कंपनी है जिन्होंने हमें हेल्प किया कि हमें थोड़ा फंड भी दिया है कि जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब यूज कर सकें। AI lab of Chandigarh University. As we all know today, more and the more companies in all industry worldwide rely on the method of the artificial intelligence to significantly improve. हमें पता है कि हम जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी रिलाई कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे को उसको एक तरीके से इम्प्रूव करने के लिए अपनी shortcomings को and all that. The growth of the artificial intelligence is contradicted by the enormous shortage of the skilled person and lack of the key technology. This is where university nowadays play a new role in providing support. An artificial intelligence lab with high performance GPU. हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया एक तरीके से मैं बोल सकूँ तो तगड़ा GPU यहाँ पे अवेलेबल है जो कि हम यूज कर रहे हैं और ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और करेंगे। These are the objectives of the AI lab कि identify innovative research directions, encouraging students to publish research articles, integrating and reasoning with the information with disparate data sources, designing. These are the different objectives of our AI lab.
These are the three main equipments. First is the GPU, second is the scheduler, and third is the user and the client. And I will show कि किस तरीके से हमारा GPU इतना पावरफुल है कि हम उसे एक तरीके से पूरी कंट्री को अपने इकोनॉमी उसको बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं. This is the GPU. This is the NVIDIA GPU that we are using, and the name is the NVIDIA DGX A100. And this GPU delivers a speed of 5 P flip-flops. P flip-flops means peta floating point operation per second. That means 5 into 10 to the power 15. मतलब इतने 10 to the power 15 ऑपरेशंस पर सेकेंड्स हमारा ये जीपीयू कर सकता है. दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ आवर एआई लैब. दिस इज अ शेड्यूलर. हमारा जो शेड्यूलर है वो एक तरीके से हमें एक्सेस करने की कैपेबिलिटी देता है टू द जीपीयू. दैट इज अ डेल फ्रॉम द डेल. दिस इज द यूजर. देयर आर 28 or 30 users. With the use of these users or clients, we are accessing that GPU. This is the architecture, that is GPU, scheduler, and the user 1 2 3. And there are no these are not only 3 users. There are approximately 30 users, and we are going to use through the remote sensing also. This is the structure of our AI lab of the Chandigarh University. This is the another PPT जिसमें हमने एक ऐप बनाई है, दैट इज कॉल्ड प्लांट डिजीज डिटेक्टर ऐप फ्रॉम द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. इसमें हमने पहले भी ऑलरेडी बता दिया कि हमने इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल दैट, क्रॉप प्रोडक्शन इज फेसिंग इश्यूज. हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब इश्यूज यूज हो रहे हैं, मतलब फेस कर रहे हैं हम. देन दिस इज द मेथडोलॉजी मेन, दैट इज image acquisition, image pre-processing and image passed through the developed model. हमने इसमें मेन ये कि हमने एक डाटाबेस लिया है हमने, जिसमें हमने और डाटाबेस को यूज किया है फॉर द एक्विजिशन, प्री प्रोसेसिंग एंड द इमेज थ्रू द डेवलप प्रोसेसिंग. दिस इज अ रिसर्च एप्रोच. अब इसमें दो चीजें यूज हुई हैं. फर्स्ट इज द ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग. पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर छोटे से बच्चे को हमने बताना हो कि हमने उसको जनवरी फरवरी एंड मंथ ऑफ द ईयर बताना हो, तो हम उसको पहले बताते हैं कि आफ्टर जनवरी फरवरी, then before फरवरी there is जनवरी एंड ऑल दैट. उसको हम ट्रेन करते हैं. सो फर्स्ट प्रोसेस इज द ट्रेनिंग. पहले हम एक छोटे से बच्चे को ट्रेन करते हैं, देन उसको चेक करते हैं कि उसको वो समझ आया कि नहीं आया. तो द फर्स्ट टू प्रोसेसेस आर दीज, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. और उसको हमने एक तरीके से इसी को हमने एक यूज किया हमने एक मॉडल के तरीके से, ताकि हम एक उसको लास्ट में एक यूज कर सकें एज अ एंड्रॉयड स्टूडियो, और उसको एक तरीके से यूज कर सकें हम एक तरीके से, ताकि हम उसको एक ऐप बना सकें. So this is the research approach we are using. First, there is a training and then is a testing. And this is the
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूरेसी, हमने जो एक्यूरेसी ट्रेन की है उसमें जब ब्लू लाइन शोज द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्टिंग, पहले हम टेस्ट किया ये बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट किया उसको अप टू दी 50 epochs and we got the accuracy of about 98%, and after the validation, that is the testing, we got the accuracy of the 94%. This is a deployment snapshot. This is the first snapshot of the of our app, in which there is a select photo, select camera and detect. इसमें अब 3 buttons है main. Select photo to select the picture from the gallery, select camera to capture the photo from the gallery, तो कैमरा को यूज करके उसको कैप्चर करना, एंड द थर्ड वन इज द डिटेक्ट टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ द डिजीज एंड द रिकमेंड इट्स ट्रीटमेंट। डिटेक्टिंग डिजीज फ्रॉम द फोन गैलरी, ये हमने फर्स्ट सबसे पहले किया है। इसमें एक डायरेक्टली हमने फोन गैलरी से यूज करके फोटो और उसको डिटेक्ट करके यूज किया, और ये वाली 2 वाली हैं, इसमें लेफ्ट वन की हमने कैमरा से डिटेक्ट किया और राइट वन की उसको कैमरा वाली फोटो को यूज किया। These are the different aspects about the app, in which detect diseases of the different plants of the diseases, and this app can detect about 39 different diseases of the app, 39 different diseases, and these 39 different diseases are of the 14 different plants, different plants, and this is a future aspect कि इसको हम यूज कर सकते हैं कि हम इसको रोबोटिक्स में, और या उसको उसके थ्रू, उसको सेंसर्स के थ्रू उसकी मेडिसिन या कुछ भी उसको डिटेक्ट करके उसको पोर कर सकते हैं। So these are the different कि हम इसको फ्यूचर में कैसे ला सकते हैं। वी आर ओनली एट द अर्ली स्टेज, हमें पता कि हम उसको अर्ली स्टेजेस में कैसे ला सकते हैं। It offers a path towards sustainable and more efficient agriculture by advancement of, बिल्कुल सही है कि हम किस तरीके से हम एडवांसमेंट और एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट ला सकते हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें। These are the few questions I'm going to ask for you all. Hello. Yes, sir, please. Thank you so much, sir. Hello. 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 Am I audible, sir? Hello. Hello. Thank you so much, sir, for making the session interesting and delivering in such a nice way and making the presentation Hello. so informative and simple. Now the session is open for the question. If anyone wishes to ask their question, can ask their doubts from the sir. Anyone having any question? Dr. Amit? Yes, sir. Can you hear me?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So I am highly thankful to you. This is a very nice lecture as you presented here, Thanks. and Thank you, sir. especially you may. Sir, it's a great privilege for me to interact with all you. No. I think this is the very best way and very informative to all participant. Very keen, interestful things discuss in the simple way and simple language, and how to goes we will to works, and especially this is a very wonderful year-wise document in Scopus and how to characterize into the graph. Thank you, sir. I Thank you, think sir. really our participant benefited it. Thanks, Thank you, Dr. sir. Amit Verma. Bilkul. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay. Now you can leave, Dr. Amit Verma. Okay, sir. Thank you. Participate. If you have any question, any query, you may send into chat box. Now the today's session is over, and you can leave. Thank you so much, everyone. You may leave now. Please.